میرے باپ کے قتل کا بدلہ تو بہت بعد میں آتا ہے فیض شاہ، میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو نے۔ وہ رک گیا کہ زبان انکاری ہوئی مزید کچھ کہنے سے۔ پرانے زخم پھر سے رسنے لگے تھے پل میں۔ نہیں، فیض شاہ کی آنکھیں خون کی وافر مقدار ضائع ہونے سے بند ہونے لگی تھیں۔ بہزاد نے وہی موجود شراب کی بوتل اس پر پھینکی۔ آنکھیں بند نہ ہوں، آنکھیں بند نہ ہوں کہ تم دیکھ سکو قیامت بیتنا کسے کہتے ہیں۔ تم دیکھ سکو کہ اذیت کی آخری حد کیا ہے، دیکھ سکو کہ موت کو سامنے دیکھ کیسا لگتا ہے۔ حرام زندگی گزارتے موت بھی حرام ہی ملے گی تمہیں۔ تمہاری بیٹی جانتے ہو کہاں ہے؟ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ فیض شاہ ایک ہی انسان سے تو اس دنیا میں پیار کرتا تھا اور وہ تھی اس کی بیٹی۔ یہی میری ماں نے کہا تھا تم سے جب تم نے۔ وہ پھر رک گیا۔ آسان کہاں تھا سالوں پہلی ملی اذیت کو پھر سے دہرانا۔ میری بہن ہماری فری کو مار دیا تم نے۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے میری ماں بہن کو؟ اس کے ہاتھوں پر بوٹ کا دباؤ بڑھا گیا تو فیض شاہ کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ تمہاری بیٹی میرے بھائی کے نکاح میں ہے، جانتے ہو اس کا مطلب؟ وہ شفقت سے بولا تو فیض شاہ کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار خوف دیکھا۔ اور تم جانتے ہو سفیر شاہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تمہاری بیٹی سے کرتا ہے۔ وہ ایک آخری وار کر گیا تھا۔ میری بیٹی۔ فیض شاہ کا آنسو گرا۔ حیوانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے فیض شاہ۔ قاتلوں کو درد نہیں محسوس ہونا چاہیے کبھی۔ تمہارا بیٹا تو مافیا کے بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہے، تمہارے پاس اندھا دھند دولت ہے، ذرائع چلاؤ اپنے اور اپنی موت سے بچ جاؤ۔ بہزاد شاہ کی جیب میں اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا فون کرنے والا سفیر شاہ تھا اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتے تھے۔ خدا حافظ، بہزاد شاہ نے کہتے پٹرول اس پر چھڑکا۔ فیض شاہ کا پورا جسم خون سے تر تھا اب، سانسیں پھولی تھیں، لیکن بہزاد شاہ نے اسے بے ہوش نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہاری بہن زندہ۔ بہزاد شاہ کے آگ لگاتے ہی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن اس شخص کے آخری الفاظ اسے منجمد کر گئے تھے۔ کیا اس نے ٹھیک سنا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ نہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ۔ اس کا فون اب بنا رکے بج رہا تھا۔ اس نے آتے جاتے حواسوں سے فون کان سے لگایا۔ وہاں سے نکلیں بھائی، ابھی اور اسی وقت، سفیر شاہ چیخ رہا تھا۔ باہر دروازے پر شور ہونے لگا تھا۔ پولیس کے سائرن کی آوازیں یکدم سے ماحول کی خاموشی کو چیرنے لگی تھیں۔ اس نے اس شخص کو دیکھا جو ابتر حالت میں کب سے اس دنیا سے ابدی زندگی کا سفر کر چکا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی کہ داخلی دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو قابو میں کر چکا تھا۔ سفیر شاہ مطمئن تھا کہ وہ اس ملک سے نکل آیا ہے۔ اس نے اپنے وہاں اس ملک میں ہونے کے تمام نشانات مٹا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا جلد یہ خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی اور سب سے پہلے اشر فیض شاہ کسی لاوے کی طرح پھٹے گا۔ بھائی، میں ٹھیک ہوں سیفی، آرام کرنا چاہوں گا، وہ کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو سفیر شاہ باہر نکل گیا۔ آپی، وہ کون تھا جو آپ کو اس دن چھوڑنے آیا تھا؟ انس نے استفسار کیا۔ آفس کی گاڑی تھی، حائفہ نے تیزی سے جواب دیا۔ آپ کے آفس والے کب سے اتنی بڑی گاڑیاں رکھنے لگے اور آپ نے کیوں مجھے روتے فون کیا تھا؟ دیر ہو گئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ انس آج ہی اپنا امتحان دیتے ہاسٹل سے واپس آیا تھا، اس لیے اس سے باز پرس کرنے لگا تھا۔ اب باپ نہیں بنو، اٹھو نکلو، حائفہ نے کہا تو انس نے اسے تکیہ دے مارا۔ اپیا، تم ہو ہی نہیں کسی کے پیار کے قابل، وہ چیخا تو حائفہ نے اس پر حملہ کرتے اس کے منہ پر ناخنوں سے وار کیا تھا اور گھر میں انس کی چیخ گونجی تھی اور سائمہ بیگم بھاگتی آئی تھی اور اب ان کے پاؤں کا جوتا تھا اور حائفہ سکندر کی کمر۔ بابا کو بتاؤں گی میں، وہ روتے چلائی تھی، پھر کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ باپ کے آتے ہی وہ فوراً ان کے پاس گئی تھی اور کھانے کی میز پر بیٹھتے کیا کہا ہے میری بیٹی کو تم ماں بیٹے نے؟ سکندر صاحب نے فوراً سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے پوچھا تھا۔ اپنی بیٹی کے کارنامے بھی بیٹے کے منہ پر دیکھ لیں، سائمہ بیگم نے ان کو روٹی دیتے حائفہ کو گھورتے کہا تھا۔ تو اس نے بھی تو مجھے مارا تھا اور بابا ماما نے میری کمر پر 2 بار جوتا مارا ہے۔ وہ پھر سے آواز نم کر گئی تھی اور اس کی توقع کے عین مطابق اب سائمہ بیگم کو ڈانٹ پڑی تھی اس کو جوتا مارنے پر، کہ حائفہ سکندر پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہرگز کسی کو نہ دی تھی سکندر صاحب نے۔ لیکن بیٹا، آپ غلطی پر ہیں۔ انہوں نے انس کے ماتھے پر 2 جگہ اس کے ناخن کا نشان دیکھتے کہا۔ ہاں، میں مانتی ہوں۔ وہ پرسکون سے ہوتی اب باؤل سے سالن نکالنے لگی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناخن کاٹو اپنے، کھانا کھا کر، سائمہ بیگم بولی تو وہ سر ہلا گئے۔
अगली सुबह उसने फिर से अपने पर्स को पूरे ऑफिस में ढूंढा था। हाइफा पागल हो गई। हो घूमने वाली चीज़ थी, गुम गई। तुम्हारे कौन से जेवर थे उसमें? ऑफिस की लड़की ने तब कर कहा। जेवर? मेरा पूरा 1200 रुपया था, साथ मेरे 3 क्रोध थे जो मैंने अभी ख़रीदे थे, और मेरा महंगा परफ्यूम। हाय, वो गम में वहीं बैठ गई तो सबने उसकी अदाकारी आंखें घुमाई। अब सब बस भी करो, अब की सदफ बोली। किसी को भी मेरा दुख नहीं समझता, वो कहती। छुट्टी होते बिना किसी से बात किए बाहर निकल गए। वो सड़क पर चलते चलते रुक गई तो 2-3 लोगों ने मुड़कर उस पागल लड़की को देखा। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, वो चीखी के लोग रुक गए। वो खज्जल सी होती तेज़ी से रिक्शे में बैठी, उसे मतलूबा जगह का एड्रेस बताने लगी कि आज ऑफिस की वैन चलने में अभी कुछ वक्त था। वो इस सड़क के पास रह गया था मेरा बैग। हाँ, उसकी गाड़ी में वापसी पर। लेकिन देखो कितना चोर आदमी है, बताया भी नहीं मुझे। ज़रूर मेरी महंगी परफ्यूम पर दिल आया होगा उसका। वो बड़बड़ाती गई थी सारा रास्ता, लेकिन खुश थी कि भला आखिर उसे इतने दिनों बाद याद आ गया था। वो उसकी कंपनी के बाहर रुकी थी और फिर बिना किसी से पूछे तेज़ी से ऊपर जाने लगी। मिस, रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उसे आवाज़ दी तो वो पैर पटकती मुड़ी। जी, किससे मिलना है? behzad शाह से। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मैं उनकी दोस्त हूँ। वो तेज़ी से बोली थी क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के तो वो अपने वज़ीर-ए-आज़म यानी बोस तक उसे जाने ना देती। उसके दोस्त कहने पर लड़की ने उसे घूरा जैसे यकीन ना आया हो। मैं दूसरे शहर से आई हूँ उनको सरप्राइज़ देने, क्योंकि ये वो लड़की नहीं थी जो रिसेप्शन पर पिछली बार थी जब वो इंटरव्यू लेने आई थी, इसलिए मन घड़त कहानी उसे सुनाने लगी। फिर भी मैं पूछ अरे, मैंने सरप्राइज़ देना है उन्हें, वो कहती तेज़ी से लड़की की अरे करते लिफ्ट में दाखिल हो गई। हाइफा चली गई तो वो लड़की फ़ोन बजने पर फिर से काम में मसरूफ़ हो गई। हाइफा लिफ्ट से निकली तो आज वो स्टाइलिश सी लड़की भी वहाँ नहीं थी। वाह, किस्मत भी साथ दे रही है, नहीं तो उस सड़ू अकड़ू बादशाह से तो ऐसे नहीं मिलने देते जैसे किसी रियासत का बादशाह हो वो बड़बड़ाती उसके कमरे के दरवाजे का नोक घुमाती अंदर दाखिल हुई। अंदर बैठे सफ़ीर शाह ने सर उठाया। बोलो। उफ़, अब ये भी यही है। सारे जहाँ की सटमहरी इन दोनों भाइयों के लहजे में आ बसी है लगता है। लेकिन सभी अमीर लोग अपने आप को तोप चीज़ समझते हैं। मुझे behzad शाह से मिलना है। उठो, उसे उठाकर बिठाया तो वो होश में आई और सफ़ीर को देखकर खौफज़दा हुई। मुझे वापस, अब से यही तुम्हारा घर है। शोहर का घर ही बीवी का घर होता है। तुम इस घर से कभी नहीं जा सकती अब, और ये बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। महा ने नम आंखों से उसे देखा। कौन सा शोहर और कैसा शोहर? वो खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। वो शोहर जो ज़बरदस्ती ज़िंदगी में घुसा था किसी आसेब की तरह, और अब उसे यहाँ लाकर उसे फरामोश कर गया था। उसने इन 2 दिनों में रोने के अलावा किया ही क्या था? खौफ था कि हड्डियों में जा बसा था अकेले रहते। तुम यहाँ से नहीं जाना अब, वो आगे बढ़ती सफ़ीर शाह का कॉलर थामते खौफज़दा होती बोली थी। मुझे डर। वो अब भी हल्के हल्के कांप रही थी। उठो, नहा लो, सफ़ीर शाह ने उसे दूर करते संजीदगी से कहा। पहली मुलाकातों वाली सख्ती मकसूद न थी। महा ने सर उठाते उस शख्स की आंखों में देखा। वो आंखें हसीन थीं, बेहद हसीन, गहरी स्याह आंखें। हाँ, गहरी स्याह आंखें कहाँ किसी की होती हैं। महा उसे देखती रही, फिर बेइख्तियारी में इस की आंखों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया कि वो उठ खड़ा हुआ। महाफैज़, होश में आओ। सफ़ीर शाह इससे इतनी नफ़रत करता था कि उसका लम्स भी खुद की ज़ात पर नहीं चाहता था। उसमें सन्नाटे उतर गए। वो शोहर जो अपनी बीवी का लम्स नहीं चाहता था खुद पर, उसका मुस्तकबिल क्या था? किसी शहज़ादे के ख्वाब क्या यूं ही ख़त्म हो जाने थे सामने वाली की नफ़रत बर्दाश्त करते करते? क्या उसे एक बेहतरीन शख्स से नवाजा नहीं गया था? वो BSc की तालिबा थी। उसने नहायत सादा ज़िंदगी गुजारी थी जिसमें सिर्फ वो और उसका बाप था। बाप ने हर आसाइश और मोहब्बत दी थी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए थे, जिसका उसने गिला बारहा किया था। सौतेला भाई जो बाप के सामने तो उसे बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में उसका सांस सुखाए रखता था। उसे याद था एक रोज़ जब वो लाइट जाने पर डरती कमरे से निकली थी कि मुलाजिम सारे जा चुके थे। वो अशर के कमरे की तरफ बढ़ी थी कि उससे लाइट का पूछ सके। उसने दरवाजे का नॉब डरते घुमाया था, लेकिन सामने का मंजर देखते उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। उसका भाई किसी लड़की पर झुका अपनी वहशत मिटा रहा था। लड़की की हालत साफ देखी जा सकती थी, जिसके मुंह पर स्कार्फ बांधा गया था और वो हाथ पांव मारती रो रही थी। दीवाना भाई।
वो बेयकीनी से वहीं खड़ी थी, सांसों की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। उसका भाई इतना घटिया था। वो जानती थी कि वो असला वगैरह और मंशियात वगैरह का काम करता था, लेकिन किसी औरत के साथ ये एहसास ही सुहाने रूह था कि उसके सामने उसका भाई किसी मासूम की इज्जत को ताड़ ताड़ कर रहा था। अगर कल को इसके भाई का किया इसके सामने आ जाता और कोई यूं ही उसे भी पमाए, उससे ज़्यादा वो सोच ना सके। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, अशरफैज़ चिल्ला रहा था, लेकिन वो तो बस इस लड़की तक पहुंचना चाहती थी। छोड़ दें उसको, नहीं तो बाबा को बता देंगे, वो धमकी आमेज़ लहजे में बोली, जिसका अशरफैज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आखिर उसका बाप भी तो यही सब करता रहा था। निकलो फ़ौरन, अशर ने कहा। ये लड़की तक पहुँचने से पहले ही थका दिया था कि वो लड़खड़ाई थी। उसे वापस भेजे, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। वो दीवानावार चिल्लाने लगी और जो हाथ में आया उसे अशरफैज़ पर फेंकने लगी और मुलाजमों को चीख कर बुलाने लगी। अशरफैज़ ने इस हद तक पहुंचते ही इसके चेहरे का हाल बिगाड़ दिया था थप्पड़ों से, लेकिन उसे तो सिर्फ सामने मौजूद वजूद नज़र आ रहा था जिसकी उम्मीद भरी निगाहें महाफैज़ पर थी। वो कैसे किसी लड़की के साथ अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखती। उसने अपना आप छुड़वाया और बाहर भाग गई। लड़की ने आंखें मूंद ली, जैसे आखिरी उम्मीद भी महाफैज़ के जाने पर ख़त्म हो गई हो। वो तेज़ी से कराडल उठाती फ़ोन कान से लगा गई थी। मुझे मदद की ज़रूरत है। वो कुछ मज़ीद बोलती कि अशर फ़ोन खींच चुका था, लेकिन वो जानता था पुलिस कभी भी पहुंच जाती और अगर ऐसा होता तो फैज़ शाह उसको ना छोड़ता। बग़ैरत औरत, तेरा तो मैं वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। छोड़ कर आओ साली को। उसने ड्राइवर को देखते अंदर मौजूद लड़की को यहाँ से ले जाने का कहा कि अब रिस्क नहीं ले सकता था। माँ ने आसमान की तरफ निगाह की। रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत भी करेंगे। उसका दिल मुतमईन हुआ। उसने ड्राइवर बाबा को देखते आंखें मूंद ली कि वो बुजुर्ग थे और अच्छे इंसान थे। अशरफैज़ ने उसे ठोकर मारी और घर से निकल गया, लेकिन वो पुरसकून हो गई थी जैसे। रब्बुल आलमीन तुम्हें उसका सिला देगा। वो लड़की बाहर निकलते माह को देखती बोली तो माह ने मुस्कुराहट दिखाई तो वो निकल गई। अपने भाई से डरते उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी जब एक रोज़ वो शख्स उसके कॉलेज की वापसी पर उससे मिला था। रोज़, यही पहला लफ्ज़ तो उसने अपने लिए सुना था उस वजीहा शख्स से जिसे एक बार कोई देख ले तो मुड़कर देखे बगैर ना रह सके। शायद वो भी उसकी वजाहत की कायल होती, लेकिन उसकी खुद के लिए नफ़रत देखते वो उससे भी खौफज़दा हुई थी। क्या दुनिया में तमाम मर्द औरतों को यूं ही खौफज़दा करते हैं? ये सवाल उसके जहन में चिपक कर रह गया। दिन पहले आए शख्स ने न जाने क्यों लेकिन बहुत कुछ कर डाला था, यहाँ तक कि उससे निकाह तक कर लिया था, लेकिन क्यों? इन सब सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, लेकिन इतना वो समझ गई थी कि वो शख्स उसके ख़ानदान को पसंद नहीं करता था, लेकिन ख़ानदान से ज़्यादा उसने सफ़ीर शाह की निगाहों में ख़ुद के लिए नफ़रत देखी थी। शायद फैज़ शाह और अशर फैज़ से उसकी किसी किस्म की दुश्मनी होती, लेकिन वो तो पहली बार मिली थी उस शख्स से, फिर वो कैसे उसे इतनी नफ़रत कर सकता था? क्या इसने कुछ बिगाड़ा था? नहीं, हर बार यही जवाब मिलता था उसे। उसके यहाँ लाने पर वो खामोश हो गई थी, रोई थी बहुत, लेकिन किसके लिए? वह सहारा बाप तो मर गया था, भाई वैसे ही उसे मार देता, तो ज़िंदगी का कोई मकसद तो वैसे भी नहीं बचा था, इसलिए उसने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ने का फ़ैसला किया था। 2 दिन वो मुश्किल वहाँ मौजूद ब्लड चैम्बर गुजारे थे कि सिर्फ वही मौजूद था वहाँ। वो खाने के बगैर रह सकती थी, लेकिन इस खौफ का क्या करती जो शाम के अंधेरे के साथ उसके वजूद पर हावी हो जाता था। लेकिन अब उस शख्स को सामने देखते उसे सब भूल गया था। वो उठी तो उसे चलने में दुश्वारी हुई कि नकाहत बहुत थी। सफ़ीर शाह भी आ गया था वहाँ मौजूद, अलमारी से कुछ ढूंढने लगा। वो फ्लैट बिल्कुल साफ़ था और हर चीज़ मौजूद थी सिवाय खाने के। सफ़ीर शाह ने एक टी शर्ट और ट्राउज़र उसको थमाया और बाहर निकलने लगा। क्या तुम जा रहे हो? लेकिन सफ़ीर शाह की सर्द निगाहों को देखती वो खामोशी से वॉशरूम में बंद हो गई और फ्रेश होते उसके दिए कपड़े पहने और बाहर आते अपना आप आईने में देखा। उसकी सफ़ेद टी शर्ट महाफैज़ के घुटनों तक आ रही थी और ट्राउज़र तो उसने न जाने कितना ही फोल्ड कर लिया था। वो बालों को बिना सुखाए ही बाहर निकल गई, जहाँ वो सोफे पर बैठा अपनी फाइल्स को देख रहा था जिसके लिए आया था। उसके वजूद को महसूस करते भी सफ़ीर शाह ने निगाहें ना उठाई थी। कुछ देर पहले वाली नरमी भी न जाने कहाँ चली गई थी। मिस, आप ग़ालिबन न्यू टीवी की जर्नलिस्ट हैं, उसकी याददाश्त की हाइफा सिकंदर कायल हुई थी। जी, अब मेरा वक्त ना ज़ाया करें प्लीज़, वो कहती तेज़ी से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। हेलो मिस्टर बेसात शाह।
ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगी, नहीं तो किसी भी वक्त आपकी वो नकचढ़ी रिसेप्शनिस्ट और वो जलाद सा भाई अंदर आ जाएंगे। उस दिन आपके घर से वापसी पर आप जो मुझे छोड़ने गए थे, मेरा बैग आप ही की गाड़ी में रह गया था। लेकिन आप कितने सियाने हैं, इतने दिन हो गए हैं आपने मुझे भिजवाया भी नहीं वापस। वो इतनी मगन थी कि अंदर एक साइड पर बैठे लोगों को ना देख सकी जो दरवाजे के पीछे वाली दीवार के साथ मौजूद सोफों पर विराजमान थे। बाहर जाए, behzad शाह जब्त से बस इतना ही बोल पाया। बाहर नहीं, घर जाऊंगी, मेरा बैग दें। मेरा 1200 रुपया था अंदर और मेरी परफ्यूम, कहीं कुछ कम नहीं होना चाहिए। वो फिर से बोली तो बेसाद शाह ने सफ़ीर शाह को देखा जो होंगों की तरह पीछे खड़ा उस पागल लड़की को सुन रहा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो इतनी तेज़ धाड़ा कि हाइफा सिकंदर सहम गई। उसका वजूद पल में कपकपाने लगा। वो उस धार पर अपनी जगह मुंजमद हो गई और लोगों पर नज़र पड़ते ही सबकी के एहसास से उसकी आंखें नम हुईं। उसे वहाँ पर ही खड़े देखकर उससे पहले कि सफ़ीर शाह उसे कुछ कहता, behzad लंबे लंबे ढक पड़ता उस तक आया और उसको बाजू को गिरफ्त में लिया। सफ़ीर शाह हैंडल दैम, वो कहता बाहर निकल गया तो सफ़ीर को उस लड़की पर तरस आया। पहली बार उसे कोई लड़की बुरी नहीं लगी थी, लेकिन वो कितनी शदीद गलती कर चुकी थी उसके फरिश्तों को भी शायद इल्म नहीं था। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने बाहर निकलते ठाड़ते कहा तो उस फ्लोर पर काम करते वो गिने चुने 5-6 लोग जमा होने लगे जिसमें एक उसकी सेक्रेटरी भी थी। सर, और तुम? इसने हाइफा के बाजू को झटके से छोड़ा। क्या मैनर्स नहीं सिखाए तुम्हें कि किसी के कमरे में कैसे दाखिल होते हैं? उसके झटका देने पर हाइफा के हिजाब पर लगे वाहद पिन गिर गई थी जिससे उसका हिजाब ढीला हुआ। ये सब पल में हुआ था। हाइफा ने आंखों से टप टप गिरते आंसुओं को रोकना चाहा। ये ऊपर कैसे आई? किस चीज़ के पैसे देता हूँ मैं तुम लोगों को कि कोई भी मेरे कमरे तक पहुँच जाए और तुम लोगों को खबर ना हो? उसके कोई भी का मतलब समझते हाइफा का दिल किया कि वो पलट कर उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारे, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा पूरा भीग गया था। चलो, उस सेक्रेटरी ने आगे बढ़ते उसके बाजू को थामना चाहा कि हाइफा एक कदम पीछे को हुई और सर पर मौजूद हिजाब आधा ठलक गया जिससे उसके सर के सामने के कुछ बाल दिखने लगे। उसने झुककर अपनी पिन उठाई और अपने ढलके हुए हिजाब को बराबर किया और एक आखिरी नज़र behzad शाह पर डालते वहाँ से भागते हुए निकल गई। behzad शाह उसके पिन उठाने पर थम गया था और फिर उसके हिजाब को खुला देख होश में आया। जाएं, अपना काम करें। सब चले गए, लेकिन वो कई लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसकी वजह से उसका हिजाब खुल गया था। वो अपने हवासों में लौटते सिर्फ इतना महसूस कर पाया था। वो तेज़ी से ग्लास वॉल्स के पास आया जहाँ से नीचे सड़क का मंजर वाज़ेह था। वो बाहर निकली थी तेज़ी से और अब सड़क के किनारे खड़ी थी। हिजाब अच्छे से सर पर जमा था अब, लेकिन उसके वजूद का कांपना वो इतनी दूर से भी महसूस कर सकता था। डैम! उसने ग्लास वॉल्स पर हाथ मारा था। वो वापस मुड़ता कि रुमान को देखता थमा, जो अब उसके पास खड़ा उसे कुछ कह रहा था। फिर कैब रोकते उसे उसमें बिठाते पैसे अदा किए थे उसने और उसके जाने पर वापस अंदर की तरफ आया था। behzad शाह लिफ्ट में दाखिल होता तेज़ी से बाहर निकल गया, जबकि आधे लोगों ने पहले उस लड़की को रोते और फिर behzad शाह को यूं तेज़ी से बाहर निकलते देखा था। निकलो, उसने ड्राइवर को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और रैश ड्राइविंग करता पार्किंग से गाड़ी निकाल कर ले गया। वो कहाँ जा रहा था नहीं जानता था और वो यूँ वहाँ से अपनी मीटिंग छोड़ता क्यों निकला था ये भी नहीं जानता था। भाई, सफ़ीर शाह की कॉल थी। सैफ़ी, मैं घर जा रहा हूँ, behzad शाह ने कहते कॉल काट दी और घर के रास्ते पर गाड़ी डाली। और फिर न जाने क्यों वो बेचैन ही रहा। उस आम सी लड़की से उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था, जबकि गलती भी उस बेवकूफ़ लड़की थी उसके नज़दीक। लेकिन उसने हाथ क्यों लगाया था उसे? वो ऐसा कोई हक़ नहीं रखता था और ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसकी आंखों में अब भी वो मंज़र लहरा रहा था जब वो अपने हिजाब की पिन उठा रही थी। उसने उसे बेहिजाब किया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ मौजूद 6 लोगों की नज़र तो उसके बालों पर पड़ी थी जो उसने ढांपे हुए थे। उसने सिगरेट सुलगाया था सारी रात। दूसरी तरफ हाइफा ने खुद को पुरसुकून किया। उसे घर जाना था अब, और इस हालत में वो कैसे घर जा सकती थी? वो वापस ऑफिस गई और वहाँ ओवर टाइम किया और वॉशरूम में जाते चेहरे को अनगिनत बार धोया कि कहीं उसके घर वाले उसकी आंखों से जान ना जाएं कि किसी ने उसको बुरे तरीके से हर्ट करते रुलाया है। लेकिन behzad शाह ने उसे काफ़ी हर्ट किया था। उसकी आंखें जब भी वो मंजर याद करती थी भीग जाती थी, जब उन सब के सामने उसका हिजाब खुल गया था और कितनी सबकी का सामना करना पड़ा था उसे। तज़लील की थी उस शख्स ने उसकी सबके सामने, सिर्फ इसलिए कि वो बिना इजाज़त उसके कमरे में चली गई थी। क्या ये इतनी बड़ी बात थी?
अब वो कभी उस शख्स के सामना नहीं चाहती थी। उसके दिल में behzad शाह के लिए नापसंदीदगी का अक्सर नुमायां होता चला गया था। अगली सुबह वो तैयार होता बाहर निकला। भाई, सफ़ीर शाह ने उसे नाश्ते की मेज़ पर बुलाया। अभी मूड नहीं है सैफ़ी। भाई प्लीज़ आ जाएं। वो सफ़ीर शाह के इसरार पर जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मंगवाई। भाई आपने कल उस लड़की शाह आपने गलत किया भाई, वो मासूम थी, ऐसे तो नहीं ट्रीट करना चाहिए था उसे। मुझे बताया आयशा ने कि उसका स्कार्फ भी खुल गया था। सैफ़ी behzad शाह बोला तो सफ़ीर शाह खामोश हो गया। उसने संजीदगी से behzad शाह को देखा। वो कैसे ना उसकी बेचैनी महसूस करता, और ऐसा उनकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि behzad शाह को किसी लड़के ने बेचैन किया था। वो खामोश हो गया। behzad शाह काफ़ी पीता, उसके बालों में हाथ फेरता बाहर निकल गया कि सफ़ीर शाह के अलावा वो किसी से मोहब्बत ना करता था। सारा दिन काम करते भी उसे कल का मंजर नहीं भूला। गहरा सांस भरते वो उठ गया। जब बेचैनी हद से सिवा हो जाए तो इलाज ढूंढना पड़ता है, और वो भी इलाज ही ढूंढने जा रहा था अपनी बेचैनी का। वो सीधा न्यू टीवी के ऑफिस आया था। उसके आते ही भगदड़ सी मच गई थी कि behzad शाह खुद वहाँ तशरीफ़ लाया था। जो लोग जाने भी लगे थे वो भी रुक गए थे। चलें सदफ़ आपी, हाइफा ने बेजारी से कहा। देख तो लेने दो कि मिस्टर शाह आज क्यों आए हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हमें क्या लगे वो क्यों आए हैं, हाइफा नापसंदीदगी से बोली थी। सामान कुछ देर में ला देता हूँ। वो सर उठाए बगैर बोला तो वहाँ वहीं बैठ गई। उसके बालों से पानी के कतरे अब गिर रहे थे। वो बुरे तरीके से अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ रही थी। अब आगे क्या होना था? क्या वो फिर से उसे छोड़ जाएगा? क्या यहाँ कैदी बनी ही वो मर जाएगी? वो उठी और छोटे छोटे कदम उठाती उस शख्स तक पहुंची। वो उससे मिन्नत करने वाली थी कि वो यहाँ से ना जाए, नहीं तो वो खौफ से मर जाएगी। वो उंगलियां मरोड़ती उसके पास जा खड़ी हुई। सफ़ीर शाह, जो तेज़ी से किसी फ़ाइल के वर्क उलटता निशान लगा रहा था, फ़ाइल पर पानी के कतरे गिरते देख सर उठाया। वो उसके पास ही खड़ी होने उंगलियां काटती मरोड़ी खड़ी थी। बोलो। वो सोफे पर पीछे होकर बैठता उस पर गहरी निगाह डालता बोला। उसके ढीले कपड़ों में नम घुंघरियाले बाल जो लापरवाही से बिखरे थे उसके शानों पर। वो छोटे कद की खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखें हल्के भूरे रंग की थी, साफ रंगत और हल्के गुलाबी गाल और होंठ नाजुक सरापा। वो बिलाशुबा किसी की भी ख्वाहिश बन सकती थी। खुद पर सफ़ीर शाह की निगाहें महसूस करते उसे पहली बार ज़िंदगी में दुपट्टे की कमी महसूस हुई थी। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये वजूद मेरी तवज्जो तुम्हारी जानिब मबज़ूल कर सकता है तो गलती पर हो। मैंने बहुत हुस्न देखा है दुनिया में, तो ये कोशिश तुम्हारी अबस जाएगी। वह सर से लहजे में बोलता उस पर से निगाहें हटा गया। माह को लगा किसी ने उसे थप्पड़ दे मारा हो। क्या वो इतनी अर्जा थी कि उस शख्स की तवज्जो हासिल करने को ऐसी कोशिश करती? मुझे ऐसी ख्वाहिशात लाहक नहीं हैं, वो मनमनाई। चेहरा खफत के मारे सुर्ख पड़ा और वो पीछे पलटती उसी कमरे में वापस चली गई जहाँ से आई थी। सफ़ीर शाह के लब इस्तज़ाइया मुस्कुराहट में ढल के फिर काम ख़त्म करता गाड़ी की चाबियाँ उठाता बाहर निकल गया। महाफैज़ ने दरवाज़ा बंद होने पर आंसुओं को अपने अंदर उतारा। वो इस चार दीवारी में फिर से अकेली कैदी रह गई थी। बेड पर औंधे पड़ते उसकी सिसकियाँ तकिए में मधुम पड़ने लगीं। वह सामान खरीद कर वापस आया और किचन में रखा और वापस कमरे में गया जहाँ वो बेड पर पड़ी थी। सामान ले आया हूँ, देख लो, पूरा है, वो शाने बेनियाजी से कहता उसके रोते चेहरे को देखे दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। वो मुंह धोकर बाहर आई तो वापस से सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। जी भाई। अब वो फ़ोन पर मसरूफ़ था, लेकिन उसकी आवाज़ महाफैज़ के कानों तक आसानी से पहुंच रही थी। मैं आ जाता हूं भाई। उसकी आवाज़ में मौजूद इज़्ज़त और मोहब्बत साफ झलक रही थी। मैंने फ़ाइल बना ली है, मैं पहुंचता हूं। ओके, वो कहता तेज़ी से चीज़ें समेटने लगा और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकलने लगा। बाहर से ही लॉक करके जा रहा हूँ, वो संजीदगी से बताता उसकी सुने बगैर निकल गया। वहाँ को लग रहा था वो वहाँ की कैदी है। क्या यही इसकी ज़िंदगी थी? इसका दिल किया ऊंची आवाज़ में रोए कि दुनिया का हर फर्द उसकी अजियत की दास्तान सुन सके। नहीं, उसे कुछ करना था। वो शख्स उसका नहीं था, ना उसके लिए बनाया गया था। वो तो किसी मकसद, किसी नफ़रत के सबब यहाँ थी। वो सारी ज़िंदगी किसकी नफ़रत बनकर नहीं जीना चाहती थी। वो सब मर्दों से दूर जाना चाहती थी जिन्होंने उसे तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दिया था। वो सामान लगाती अपने लिए ब्रेड अंडा बनाने लगी। उसे सफ़ीर शाह के भाई तक रसाई हासिल करनी थी। सफ़ीर शाह शायद सिर्फ उसी से डरता था। शायद वो शख्स उसे यहाँ से निकलवा लेता नहीं, और शायद इस बेनाम और ज़बरदस्ती के रिश्ते से भी।
उसे सफ़ीर शाह का फ़ोन चाहिए था, बस अब किसी भी तरह से। सर, वेयर हाउस में आग लगी है। ये खबर सफ़ीर शाह और behzad शाह पर बिजली बनकर गिरी थी। ये कैसे मुमकिन था? वो दोनों पागलों की तरह दौड़े गए थे। वो जगह उनके लिए क्या मायने रखती थी, कोई नहीं समझ सकता था। ये उनकी माँ और बहन का मुश्तरका ख्वाब था। यही वजह थी कि वो और किसी चीज़ का बिजनेस किए बगैर डिज़ाइनर हाउस खोले बैठे थे। लेकिन उनका असल काम क्या था, कोई नहीं जानता था। ये कैसे मुमकिन है सफ़ी? सफ़ीर शाह ने सालों बाद behzad शाह की आवाज़ को यूँ टूटे हुए देखा था। वो दोनों वहाँ फ़ौरन पहुँचे थे, लेकिन किसी बड़े नुकसान से बच गए थे क्योंकि आग पूरे तरीके से नहीं फैली थी। उनका निचला पोर्शन का पिछला हिस्सा जला था, जिनमें उनके नए डिज़ाइंस पर काम हो रहा था। नुकसान काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस जगह को महफूज देखकर वो कुछ मुतमईन हुए थे। behzad शाह के गुस्से से फूलती रगें उसे बेचैन कर रही थी। उसने कब से उसे यूँ बेबस पाया था। भाई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। हम इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन जिसने ये किया है उसका नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होना करार पाता है अब। वह फ़ौरन उठता कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करने गया था, जहाँ उसे ख़ास कुछ नहीं मिला था सवाए उस एक शख्स के जो कुछ मशकूक लगा था उन्हें। इन दोनों की निगाहें अनगिनत स्क्रीन्स पर चिपकी थी जब उस शख्स ने यहाँ वहाँ देखते बिजली की तारों से छेड़छाड़ की थी ताकि वो हादसा लगे, शॉर्ट सर्किट का। behzad शाह ने मुट्ठी भींचते गज़ब भरी निगाहों से उस शख्स के चेहरे को हिफ्ज़ किया। ये कल सुबह तक मुझे बाहर खुली हवा में सांस लेता ना दिखे, उसने मखसूस लोगों को कहा और उठ खड़ा हुआ। उसे जल्द से जल्द इस जगह को ठीक करवाना था कि उनकी नई कलेक्शन की लॉन्च के साथ उन्होंने एनजीओ की बुनियाद भी रखनी थी जो बुज़ुर्गों के लिए थी। इन सब में वो दोनों काफ़ी थक गए थे। कहाँ आ रहे हो? behzad शाह ने उसे अपने साथ आते संजीदगी से इस्तफ़ार किया। आपके साथ घर, काफ़ी थक गया हूँ। और कहाँ जाऊँगा? वो तअज्जुब से बोला। वहीं जाओ जहाँ अपनी बीवी को रखा हुआ है, या उसे भी घर ले आओ। भाई, सफ़ीर शाह ने हैरत से गंग उसे देखा। वो अभी अपनी बात को रद्द कर देगा। सैफ़ी जाओ, वो अकेली होगी। behzad शाह अब के नरमी से बोला तो वो दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया कि इसकी कोई बात नहीं टालता था, लेकिन इस वक्त महाफैज़ की शक्ल नहीं देखना चाहता था वो कम अज़ कम। वो सुबह के 5 बजे घर में दाखिल हुआ जहाँ खामोशी थी। वो सोई थी अपने कमरे में जहाँ उस दिन से ठहरी थी। वो थके असाबों के साथ साथ वाले कमरे में बंद हो गया। फ्रेश होते ही बेड पर गिरा कि आंखें नींद और थकावट से बेहाल थी। वहाँ ने उठते बेदिली से फ्रेश होते कमरे की हालत को बेहतर किया और बाहर आई, जहाँ सफ़ेद शाह की चीज़ें बिखरी देख उसे अंदाज़ा हुआ कि वो घर पर ही मौजूद है। इस वक्त घड़ी 9 बजा रही थी। उसका दिल धड़का। उसे जो भी करना था आज ही करना था। वो साथ वाले कमरे में बिना आवाज़ पैदा किए धड़कते दिल के साथ दाखिल हुई। वो ऊँधा पड़ा बेफिक्र की नींद सो रहा था। वो बिना चाह के उस तक आई और यहाँ वहाँ देखा। साइड दराज पर उसका फ़ोन और गाड़ी की चाबियाँ पड़ी थी। उसका दिल मानो कानों में धड़क रहा था। खौफ से टांगें कांप रही थी, लेकिन इस कैद से रिहाई के लिए उसे खुद ही कुछ करना था। सर, शफीक हाइफा को बुला रहे हैं, मुलाजिम ने आकर कहा तो सबकी गिरदनें हाइफा की जानिब मुड़ी। वह सबको नज़रअंदाज करती उठ खड़ी हुई, फिर अंदर दाखिल हुई और सलाम किए बिना उस शख्स को नज़रअंदाज किए शफीक सर को देखा। सर, आपने बुलाया? जी हाइफा बेटा, उस दिन पार्टी में आपका बैग रह गया था। मिस्टर behzad मुझसे मिलना चाहते थे तो ये भी साथ ले आए। थैंक यू सर। उसने बैग थामा और बाहर निकल गई। अब की बार भी उसको नहीं देखा था और यही चीज़ behzad शाह को हजम नहीं हुई थी। फिर मुलाकात होगी, वो शफीक से कहता बाहर निकल गया, जबकि अब भी सबकी निगाहें उसी पर थीं। वो उससे बात किए बगैर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सबको एक ही ऑफिस वैन में बैठते देख वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार कर रह गया। मिल गया बैग? साइमा बेगम ने उसके हाथों में उसका बैग देखते इस्तफार किया, क्योंकि उसने काफ़ी वावेला मचा रखा था उस बैग के लिए। जी। कहाँ से? ऑफिस में से ही, वो बोलती खाना खाने लगी। हाइफा बेटा, तबीयत ठीक है? उसे कल से खामोश देखकर सिकंदर साहब ने इस्तफार किया। जी बाबा, बस सर में दर्द है। अच्छा चलो दवा लो और आराम करो, वो बोले तो वो खाना खाकर दवा लेती कमरे में चली गई। उसे behzad शाह से कोई लेना देना नहीं था। उसने सोच लिया था वो कोई इंटरव्यू उस शख्स का नहीं लेगी मुस्तकबिल में भी। वो भूल जाएगी कि इस नाम के किसी शख्स को वो जानती भी थी, लेकिन अगली सुबह अपने सामने behzad शाह को देखते वो ठटकी थी। आज वो लेट हो गई थी, इसलिए उसे सिकंदर साहब ने छोड़ा था। behzad शाह की गाड़ी वहीं ऑफिस से कुछ दूर देखते वो ठटके ज़रूर थे, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दिया। मिस हाइफा? हाइफा ने अपने नाम की पुकार सुनकर भी नज़रअंदाज किया। हाइफा?
क्या आप चाहती हैं कि पूरी सड़क पर मौजूद लोग रुक कर हमारी बात सुनें? वो संजीदगी से बोला तो हाइफा के कदम थमे। वापस उस तक तेजी से आई। मिस्टर behzad, मुझे नहीं लगता हम एक दूसरे को जानते हैं। जो भी आप उस दिन कर चुके हैं उसके बाद मैं अपने याददाश्त के सफ़ों से आपको मिटा चुकी हूँ और यूं सड़क पर खड़े हो कर मुझे मुखातिब करने पर भी मैं आपको ऐसे ही जलील कर सकती हूँ जैसे आपने मुझे आपके ऑफिस में किया था। वो उसकी आंखों में आंखें डालती बोली, वो कितनी भी लापरवाह क्यों ना सही लेकिन इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं था। मेरी बात सुने, behzad शाह ने संजीदगी से कहा। अभी मैंने अगर नहीं चाहती कि कोई हमें देखे तो मेहरबानी करे रास्ता छोड़े और मेरे साथ आए। हरगिज़ नहीं। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है हाइफा। वो मिस हटा चुका था लेकिन हाइफा ने रिपोर्ट नहीं किया। आपको समझ नहीं आ रही? behzad शाह मुड़ा और उसके नज़दीक आता कि वो तेज़ तेज़ कदमों से उससे पहले ही उसकी गाड़ी तक पहुंच गई कि कहीं फिर वो उसकी बाजू को गिरफ्त में ना ले ले। जल्दी बोलें, आपने अपने बैग में चीज़ें चेक कर ली थी? क्या आपने मुझे ये पूछने के लिए रोका है? तो बदू जवाब आया। देखें हाइफा, आपका उस दिन हिजाब खुल गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो सब अचानक हुआ था। मेरा हरगिज़ हरगिज़ ऐसा करने का इरादा नहीं था। आपका शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी थी मुझे। हाइफा की आंखें फिर से नम हुईं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बैग से टिश्यू ढूंढने लगी कि behzad शाह ने अपनी गाड़ी में से निकाल कर उसके आगे किए। मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं है। behzad शाह बेचैन हुआ। रुला आप उस दिन चुके हैं और जितनी सबकी मैंने उस दिन महसूस की है कभी किसी ने मुझे इतना रुस्वा नहीं किया। वो अब बाकायदा रोने लगी थी। behzad शाह ने उसके आगे खड़े होते उसे बिल्कुल छुपा दिया था कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। आई एम सॉरी, और वो बोल गया था। behzad शाह अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी सनफ़ नाज़ुक के लिए सुबह सुबह वहाँ मौजूद था। अपने सारे काम मुलतवी किए और अब पहली बार किसी लड़की से माफ़ी मांग रहा था। हफ़ा सिकंदर ख़ास थी, इस बात का इतराक तो हो गया था। माफ़ी मांगने से क्या होगा? वो सिसकी भरते बोली थी। रोना बंद करें। उसकी सुर्खोती नाक को देखता वो बोला, यह आपका ऑफिस नहीं है, मुझ पर हुक्म नहीं चलाएं और पीछे हटें। वो बोली लेकिन behzad शाह पीछे नहीं हुआ और टिश्यू फिर से उसके आगे किए। चेहरा साफ करें। अब के वो संजीदगी से बोला था। उस लड़की के आंसू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। आप हर लड़की की बेइज्जती करने के बाद उससे यूं ही माफ़ी मांगते हैं। आप पहली और आखिरी लड़की हैं। नहायत सादा अल्फाज। वैसे आपके पैसे पूरे थे। वो न जाने क्यों लेकिन आंखों में चमक लिए बोला तो हाइफा ने आंखें छोटी किए उसे देखा। आपने मेरा बैग खोला था? वो आंखें छोटी किए उसे देखते बोली। behzad ने कंधे उचकाए। उस लड़की से ज़्यादा उसकी आंखें बोलती थी। तो मैं समझूं आपने मुझे माफ़ किया। शायद वो पहली बार किसी के सामने यूं मौजूद था माफ़ी का तलबगार बने। अपने सब काम छोड़े, अपनी मीटिंग्स को छोड़े वो यूं सड़क पर खड़ा एक आम सी लापरवाह लड़की के सामने टिश्यू का डब्बा थामे उसकी माफ़ी के लिए खड़ा था। इस behzad शाह को तो वो खुद नहीं जानता था। बिल्कुल नहीं। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। खुदा हाफिज़। वो कहती आगे बढ़ गई लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, उसकी पुश्त को देखते, उसके कहे आखिरी अल्फाज के हसार में। क्या इसने इस हद तक हर्ट किया था उसे कि वो उसे देखना नहीं चाहती थी मुस्तकबिल में? इस बात ने उसके अंदर की बेचैनी को मज़ीद बढ़ाया था। वो गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ गया था और फिर सारा दिन मसरूफ़ रहा। अपने आप को क्या समझता है? क्या आई एम सॉरी से सॉरी हो जाती है? तुम्हें भी ऐसी कोई सख्त सज़ा देनी चाहिए थी हाइफा। वो खुद से बातें कर रही थी। इन सब में वो ये फरामोश कर गई थी कि behzad शाह खुद चलकर 2 बार सिर्फ उसके लिए वहाँ आया था। भाई, मुझे कुछ पता लगा है आपके बारे में। वो दोनों इस वक्त काम करने के बाद कॉफ़ी पी रहे थे। क्या? कि आप उस लड़की से मिलने गए थे? किससे? behzad शाह झटके से मुड़ा था। कितनी लड़कियों को मिलते हैं आप? सैफ़ी, तुम्हें कैसे पता है? बस मैंने नज़र रखी हुई है आप पर। अच्छा बताएं फिर क्या कहा उसने? मैंने बैग वापस करना था उसका, कर दिया। हाँ, ये तो पहले दिन की बात है, लेकिन दूसरे दिन सड़क किनारे क्या बात हुई? वो बोला तो behzad ने उसे घूरा। किसने बताया है तुम्हें? रुमान ने देखा था आपको, सफ़ीर ने बताया तो behzad शाह ने होंठ पीछे। वो क्या लेने गया था वहाँ? पता नहीं, सफ़ीर शाह ने कंधे उचकाए। अब बताएं तो क्या बात हुई? कुछ नहीं, सॉरी बोला मैंने, लेकिन वो मुझसे मुस्तकबिल में कभी मिलना नहीं चाहती। behzad शाह ने उसकी तरफ पुश्त करते कहा। और पहला झटका लगा था सफ़ीर शाह को कि behzad ने किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी लड़की से।
وہ سنجیدگی سے اپنے بھائی کی پشت کو دیکھنے لگا۔ چلیں کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، وہ بولا تاکہ بہزاد شاہ کا رد عمل دیکھ سکے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ عام سی تو تھی، اور مجھے کچھ خاص پسند۔ سفیر شاہ اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ سفیر شاہ مسکرایا، یعنی بات آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتا اٹھا اور اسے گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تو مس حائفہ، صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے، وہ بولتا آنکھیں موند۔ کیا؟ وہ جھکی، لیکن سفیر شاہ جس کا رخ اسی طرف تھا اس کو دیکھتے تھم گئی۔ دل جیسے پرسکون ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہرا سکون محافظ کو بے قل کر گیا۔ کیا کوئی مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ سفیر شاہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا جس سے اس نے بات کی تھی یا جو اس کے قریب تھا۔ ان کے درمیان موجود رشتہ فراموش تو ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں تو وہ فوراً فون اٹھاتی اسی آہستگی سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور ہونٹ کاٹتے فون کو دیکھا جس پر خوش قسمتی سے لاک نہیں تھا لگا تھا۔ اف، اسے لگا قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، نہیں تو آج کے دور میں کون فون پر پاسورڈ یا فیس لاک نہیں لگاتا تھا۔ شاید سفیر شاہ کے پاس کوئی اور فون بھی ہو، پرسنل۔ یہ سب باتیں بات پر چھوڑتے اس نے فون کو کھنگالا، جہاں ریسنٹ کالز میں ہی اسے بھائی کا نام جگمگاتا دکھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور انگلی اس نام پر رکھ دی اور پھر انتظار کرنے لگی۔ ایک کال، تین، اور پھر چھٹی کال پر بھی کال موصول نہ کی گئی تو اسے رونا آنے لگا۔ اس کے بعد شاید اسے موقع نہ ملتا۔ یا رب العالمین، پلیز مدد فرمائیں، وہ بولی کہ کال اٹھا لی گئی۔ سب خیریت ہے سیفی؟ سوئے نہیں؟ بھاری گمگیر آواز پر مہا کا دل، اگر وہ بھی اپنے بھائی کی اصلیت جانتا ہوا اور اس کے ساتھ ہوا تو۔ ہیلو، وہ سوکھے لبوں کو زبان سے تر کرتی بمشکل بولی۔ جی، بہزاد شاہ کا جواب ٹھہرا ہوا آیا تھا۔ کیا آپ سفیر شاہ کے بھائی ہیں؟ وہ دروازے کو دیکھتی آہستہ آواز میں بولی تھی۔ جی بیٹا، بولیں۔ وہ شخص اسے جانتا تھا، اسی لیے اتنا پرسکون تھا شاید۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار کر روئے۔ ایک واحد اور آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ بولے مہا۔ پھر سے اس شخص کی بھاری آواز گونجی تو وہ آنسوؤں کو حلق میں اتارتی گویا ہو، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی دشمنی بابا اور بھائی سے ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ لوگوں کی نفرت خود کے لیے دکھتی ہے۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ سسکیوں کو دباتے استغفار کرنے لگی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ کی بھی تو کوئی بہن ہوگی، پلیز مجھ پر ترس کھائیں، مجھے اپنی بہن سمجھیں۔ میں تو کبھی کسی سے نہیں ملی، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کے بھائی کا؟ میں یہاں قیدی کی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے آزاد کریں۔ میں خوف میں ہوں، سن رہے ہیں آپ کا بھائی مجھے خوف زدہ کرتا ہے، وہ مجھے اپنی نفرت میں مار دے گا اور میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چلاتی کال کاٹ گئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر گر رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اس کا فون رکھ آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر اس کے بھائی نے سفیر شاہ کو سب بتا دیا۔ سفیر شاہ کی آنکھ مسلسل بجتے فون سے ہوئی تھی۔ اس کے گھڑی پر وقت دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا جہاں بھائی کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ بہزاد شاہ کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کرتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جہاں آپ نے صبح مجھے بھیجا تھا۔ مہا کہاں ہے؟ ہوگی اپنے کمرے میں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے ملو آ کر فوراً۔ اور کال کاٹ دی گئی تو وہ فریش ہونے چلا گیا۔ باہر نکلتے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ بھی باہر نکل گیا۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ سفیر شاہ کو یہی لگا تھا کہ وہ شخص جسے پکڑنے کا بہزاد نے کہا تھا وہ مل گیا ہے۔ وہ پکڑا گیا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں بلایا تمہیں میں نے۔ اچھا، حکم کریں پھر، سفیر شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ مجھ سے محبت کرتے ہو سیفی؟ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ سفیر شاہ تڑپ اٹھا۔ بیٹھے رہو، کیونکہ اگر محبت کرتے ہو تو مجھے بارہا ایک ہی بات نہ سمجھانی پڑتی تمہیں۔ بھائی کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سفیر شاہ نے فوراً بہزاد شاہ کے ہاتھ تھامے۔ وہ دنیا کو ناراض کر سکتا تھا لیکن بہزاد شاہ کو نہیں، جس نے جان چھڑکی تھی اس پر۔ وہ اس کا باپ، ماں، بھائی، دوست سب تھا۔ مہا، سفیر شاہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ بھائی میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ابھی تو نہیں، کم از کم۔ کیوں؟ اسے وہیں تا عمر قید کر کے رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟
کیا فرق پڑتا ہے؟ سفیر شاہ بیزاری سے کندھے اچکا گیا۔ یہ بیزاری میں تمہارے لہجے میں تمہاری بیوی کے لیے آج کے بعد نہ دیکھوں، اور مجھے کبھی دوبارہ یہ بتانا نہ پڑے کہ وہ سفیر شاہ کی بیوی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بھائی؟ کیا بھائی؟ تمہیں اندازہ ہے وہ لڑکی کتنا تڑپ رہی ہے وہاں اکیلے رہتے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آج کوئی میرے بھائی کی سفاکت کی کہانی مجھے سنا گیا ہے۔ سفیر شاہ: کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ پیزاد شاہ غصے سے بولا تو سفیر نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ محافظ: لیکن اس نے کیسے رابطہ کیا بھائی سے؟ یہی سوال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ جواب دو مجھے۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس سے نفرت۔ شٹ اپ! بکواس نہیں سفیر شاہ، یہ لفظ میرے سامنے مت بولنا۔ اتنی نفرت تھی تو اسے نکاح میں نہ لیتے پہلے، اور اب وہ نکاح میں ہے تمہارے جان لو کہ بیوی کا درجہ تم نے دیا ہے اسے، اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہ دیکھوں میں دوبارہ، اسے وہ مقام دوں جس کی وہ حقدار ہے۔ سفیر شاہ سرخ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ جاؤ واپس، وہیں رہو گے تم تب تک جب تک اسے یہاں نہ لے آؤ۔ ہرگز نہیں، وہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ سفیر شاہ پھٹ پڑا تھا۔ تو تمہاری بھی جگہ نہیں ہے میرے گھر میں پھر؟ اب تبھی آنا جب اسے ساتھ لے آؤ۔ بہزاد شاہ بولا تو سفیر اٹھا اور نکل گیا۔ وہ اشتعال کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس غیر لڑکی کی وجہ سے بہزاد شاہ، اس کے بھائی، اس کی جان، اس سے نہ صرف غصہ تھا بلکہ ناراض بھی ہوا تھا۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کو جان سے مار دے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا اور چیزیں لیتا فوراً دروازہ کھول کر واپس لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ محافظ باہر آؤ فوراً! اور اندر موجود جائے نماز پر بیٹھے محافظ کو لگا موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور یہاں وہاں دیکھا۔ اسے دور جانا تھا اس شخص سے، اس کے غصے سے۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی طرف بڑھی، تبھی وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بالکنی کا دروازہ بند کرتی، وہ فوراً سے اس کے پاس آتا اسے ایسا کرنے سے روک گیا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات چھائے تھے، دماغ کی شریانیں پھولی تھیں اور چہرہ ضبط کے مارے سرخ تھا۔ بھائی سے کیسے رابطہ کیا تم نے؟ وہ دھاڑا تھا۔ مہا کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا جو اس کی سخت گرفت میں تھا۔ بولو۔ فون کال۔ وہ لرزتے بمشکل بولی۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ وہ شخص جس نے میرے منہ سے نکلنے سے پہلے مجھے سب دلوایا ہے، جو سب سے ناراض ہو سکتا ہے مجھ سے نہیں، جس کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی شخص سفیر شاہ معنی رکھتا ہے، اس نے آج تمہاری وجہ سے نہ صرف مجھ پر غصہ کیا ہے بلکہ مجھے گھر سے نکالا ہے، وہ گھر جہاں وہ میرے بغیر بھی زیادہ دن نہیں رہتے۔ سفیر نے اسے جھٹکا دیا تو اس کی کمر پیچھے ریکنگ سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ حائفہ آج پھر اپنے نام کی پکار سنتے تھمی تھی، لیکن سفیر شاہ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھنے لگی تو سفیر شاہ نے غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے بھائی کے سامنے تو بالکل ہی چھوٹی سی لگتی تھی اور نخرے آسمانوں پر تھے۔ میں آفس آ جاتا ہوں پھر، وہ دھمکی دیتا بولا تو حائفہ اس کے آگے آ رکی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی نے سوری کیا تھا آپ سے۔ کون سے بھائی نے؟ وہ لا علمی کا اظہار کرتے بولی۔ بہزاد شاہ نے۔ ابھی کل کی بات ہے، اتنی بھولی نہیں بنی۔ یہ میری بات سنیں آپ ایکس وائی زی، یہ اتنا غصہ جو آپ دونوں بھائیوں نے ناک پر بٹھا رکھا ہے نا، اپنے تک رکھیں، دوسروں پر نہیں جھاڑیں۔ وہ ناک چڑھاتے کڑے تیوروں سے بولے۔ سفیر شاہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ہم سچ میں معذرت خواہ ہیں اس دن کے لیے، لیکن آپ کو ایسی میٹنگ کے دوران نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہاں کئی لوگ موجود تھے جو آپ نے دیکھے نہیں شاید۔ بھائی کی ساخت کے ساتھ آپ کا نام بھی آ جاتا اور اسکینڈل بن جاتا جو یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا، اور آپ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا؟ وہ نرمی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کو خود پر یوں چلانے کا حق نہیں دیتی، وہ نخرے سے بولی۔ بھائی معافی مانگ تو چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائی کی سفارش کرنے آئے ہیں؟ سفیر شاہ گڑبڑایا تھا پہلی بار۔ بالکل درست سمجھی آپ، لیکن غلطی آپ دونوں کی تھی تو آپ کو بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کیا یاد کریں گے؟ وہ ناخنوں کو سامنے کرتی ادا سے ان پر پھونک مارتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ پھر سے کمر پر ہاتھ رکھتی لڑنے والے انداز میں بولی۔ آپ پر تو نہیں ہنسا، وہ مسکرایا۔ اب چلتا ہوں۔
हाँ जी जाइए, आपकी सल्तनत अपने बादशाह का इंतज़ार कर रही होगी। वो बड़बड़ाती आगे बढ़ गई जबकि वो सुनता मुस्कुरा गया। उफ़ भाई उफ़। वो सीधा behzad शाह के पास आया था जिसके अताब का निशाना बने थे आज ऑफिस के सारे वर्कर्स। आपको पता है मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? मुझे इस वक्त दिलचस्पी नहीं है शाह, और तुमने कितने दिनों से काम पर ध्यान नहीं दिया। हाइफा सिकंदर से मिलकर आया हूँ, वो बोला तो behzad शाह खामोश हो गया। फिर हैरत और संजीदगी से उसे देखा। वजह पूछ सकता हूँ? हमारी वजह से वो हर्ट हुई थी इसलिए। तुम्हारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से। और क्या मुझसे इजाज़त ली थी तुमने ऐसा कुछ करने से पहले? भाई वो कितनी स्वीट है लेकिन बहुत लड़ाका है। behzad शाह भी खामोश हो गया था जैसे मज़ीद सुनना चाह रहा हो। माफ़ कर दिया उसने आपको? behzad शाह ने गहरा सांस भरा। अब तो आपको गिल्ट नहीं रहेगा ना, इसीलिए पुरसकून हो जाएं और भूल जाएं उसे, वो बोला और behzad शाह के तासुरात देखे जो सख्त हुए थे। मैं चलता हूँ, सफ़ीर शाह कहते बाहर निकल गया। मिस आमना मुझे कुछ पिंस चाहिए। कौन सी पिंस सर? हिजाब पिंस, वो बोला तो आयशा ने हैरत से उसे देखा। मैं इंतज़ाम कर देती हूँ सर, मुझे फ़ाइन क्वालिटी की चाहिए, सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत। ओके सर, वो कहती बाहर निकल गई और फिर इंतज़ाम करते हर तरह की मंगवा कर उस तक पहुँचाई। हाइफा बेटी ये आपके लिए आया है। प्यून ने लाकर उसे एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता दिया और साथ एक पार्सल। मेरा? जी नहीं चचा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कौन भेजेगा? मालूम नहीं, नाम देख लें, उन्होंने कहा तो उसने चेक किया और उस पर हाइफा सिकंदर लिखा देख वो चौंकी, फिर उन्हें वापस भेज दिया। वो इस वक्त अकेली शफीकुर रहमान के कमरे में अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। वो लिफाफा खोलने लगी तो उसमें से नेट में कई डिज़ाइंस की हिजाब पिंस निकले जिसे देख उसका मुंह खुल गया। वह सब बेहद प्यारी थी। साथ एक कागज़ था। एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपको हर्ट करने की, आपको आपकी इजाज़त के बिना हाथ लगाने की और अपने लहजे की। उम्मीद करता हूँ अब आप मुझे माफ़ करके मेरी बेचैनी को ख़त्म करेंगी। behzad शाह, क्या मुनफरद अंदाज था। पहला तोहफ़ा। हाइफा ने कई बार इस तहरीर को पढ़ा था। उसके दिल धड़का तो वो सर झुका गए जैसे खुद भी अपना आप छुपाना चाहा हो। चेहरे पर गुलाल बिखरा था पल के लिए। उफ, मैं ये क्यों रखूँगी? वो उठी और फूलों का गुलदस्ता लेती बाहर गई। जैन भाई जी, आप घर जा रहे हैं? हाँ, मुझे कोई तुम्हारी तरह ओवर टाइम करने का शौक़ नहीं है। इस ऑफ़िस में तकरीबन तमाम लोग ही हाइफा को जानते थे और सबको वो बहुत पसंद थी। अच्छा ये ले लें, आप अपनी बीवी को दे दीजिएगा। उसने फूलों का गुलदस्ता उसे दिया और साथ वो पिंस वाला पैकेट भी। क्यों? सैन को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। बस दे दीजिएगा, वो खुश होंगी। लेकिन ये तुम्हारी चीज़ें हैं हाइफा। चलो मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ये ले लें। इसने एक फूल निकाला और वापस उन्हें पकड़ाया। एक मैंने रख लिया है, बाकी आप रख लें, मेरे किसी काम का नहीं। मेरा कौन सा कोई शौहर है जो उसे दूंगी। आप अपनी बीवी को खुश कर दें, वो बोली तो वो हंसता पकड़ गया। ये भी ले लें, उसने पैकेट आगे किया। हरगिज़ नहीं, ग़ालिबन ये तुम्हें किसी ने तोहफे में दिया है और तोहफ़ों की यूँ पामाली नहीं करते। भाग जाओ अब। वो उसे समझाता बाहर निकल गया। उसकी बात हाइफा के दिल को लगी थी। लेकिन वो कैसे किसी गैर शख्स का तोहफ़ा रख सकते थे? इस बात को बाद में सोचने पर छोड़कर वो अपना सामान समेटने लगी घर जाने के लिए। महज़ाद तक उसकी इस हरकत की खबर पहुंच गई थी और उसे इसकी ये हरकत काफ़ी नागवार गुजरी थी। यानी इसकी नज़र में उसके तोहफ़े की कोई अहमियत नहीं थी। उसने फ़ोन उठाया। शफीक साहब? जी बेसाद साहब बोले, कैसे याद किया? मैं एनजीओ खोल रहा हूँ जिस पर मैं अरसे से काम कर रहा था, तो मुझे उसके मुतल्लिक इंटरव्यू देना था। आप चाहें तो आर्टिकल भी लिखकर छपवा लें। पिछली बार काफ़ी हार्श हो गया था मैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। एनजीओ के लिए मुबारकबाद वसूल करें और मुझे खुशी हुई कि आपने हमारे चैनल को चुना। मैं कल ही हाइफा को भेजता हूँ। दूर बैठे बेसाद शाह के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो अभी नई है, कुछ ना कुछ सीख रही है, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखती है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी सीनियर। नहीं कोई मसला नहीं, वो बोला तो शफीक साहब ने अलविदाई जुमले अदा किए और अपने ऑफिस में दाखिल हुए। जा रही हो बेटा? जी अंकल, उसने तेज़ी से चीज़ें समेटी। वो फूल और लिफाफा भी तेज़ी से बैग में डाला। कल जल्दी आ जाइएगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा किसके?
behzad शाह के, वो बोले तो उसके हाथ थमे, फिर झटके से सर उठाया। behzad शाह के, वो एनजीओ खोल रहा है, उसी पर इंटरव्यू लेना है, सवाल तैयार कर लेना, और इस बार कोई बदमज़गी ना हो कि उसने सबको छोड़कर हमारे चैनल को चुना है। वो गहरा सांस भर गई। ओके सर, चलो जाओ, रब की अमान, खुदा हाफिज सर, वो कहते निकल गई। अगली सुबह वो तेज़ी से नाश्ता कर रही थी। हाइफा, आराम से खाओ, ये क्या जंगलियों की तरह टूट पड़ी हो खाने पर। सामा बेगम ने उसे लताड़ा। मामा, गाड़ी चली जाएगी तो वक्त से उठ जाना था ना, अभी दुपट्टा भी नहीं लिया तुमने। और गाड़ी का हॉर्न सुनते उसने अपनी माँ को देखा, फिर सिकंदर साहब को जो मुस्कुरा रहे थे। आराम से खाना खाएं, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बाबा आपको अलग रूट पर आना पड़ना है। कोई बात नहीं, जाओ अनस ड्राइवर को बता कर आओ। वो बोले तो हाइफा सुकून से खाना खाती माँ की खोरियों को नज़रअंदाज कर गई। क्या चाहती हो, बीवी बनाऊं तुम्हें? बहुत शौक़ है बीवी बनने का। जितना हो सकता है मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी अपनी जान पर महासफ़ीर शाह। वो कहता झटके से उसे छोड़ता चला गया तो माह कब की रुकी सिसकियां हवा में गूंजने लगी। उसकी कमर पूरे तरीके से दर्द हो रही थी। वो नीचे बैठ गई। हाँ, दर्द को रोकने के लिए उसने सिसकी रोकी और उसी की पहनी शर्ट से नज़र अपने बाजू पर डाली, जहाँ कुछ देर पहले उसकी गिरफ्त थी। वहाँ पर उसकी उंगलियों के निशान अब भी थे। या रब्बल आलमीन, वो वहीं बैठती चली गई और घुटनों में मुंह देते रोने लगी। वो मुझसे नफ़रत क्यों करता है? क्या मैं सिर्फ नफ़रत किए जाने के लिए बनाई गई हूँ? सफ़ीर शाह गुस्से से पागल होता कमरे में आया था। अलमारी से कपड़े निकालते वॉशरूम में बंद हो गया और शावर के नीचे खड़े होते दिल में लगी आग को कम करना चाहा। फिर आधे घंटे बाद बाहर निकलते सिगरेट सुलगाया और अपने कमरे से मुंसलिक बालकनी में निकल गया। इर्द गिर्द सन्नाटा था, क्योंकि वो काफ़ी पुरसकून इलाका था। उसके एहसासात अजीब से थे, लेकिन सारे एहसासात और जज्बात पर भाई की नाराज़गी का जज्बा गालिब था। क्या उसे अपनाना था अब महाफैज़ को? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस लड़की से नफ़रत थी उसे, जिसकी वजह से आज उसकी बहन, उसकी गुड़िया उनके दरमियान नहीं थी। वही लड़की तो वजह थी उसकी बहन की मौत की। वो कातिल थी उसकी बहन की और उसकी खुशियों की। शाम के 5 बजे वो बाहर निकला, भूख बर्दाश्त से बाहर होने पर। वो वहाँ नहीं थी। वो खामोशी से खाना ले आया और किचन में रखते उसके दरवाजे की तरफ गया। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो वो बिस्तर पर थी। जाग रही थी या नहीं, सफ़ीर शाह को अंदाज़ा न हुआ। बाहर आओ, वो सच से लहजे में बोलता उसे देखने लगा, जिसके वजूद में होती हलचल से वो अंदाज़ा लगा गया कि वो जाग रही है। माह बाहर पहुंचा फ़ौरन। वो बोलता बाहर निकल गया। आकर खाना बर्तनों में निकाला और बाहर लाउंज की मेज़ पर रखता कुर्सी पर बैठ गया और खाना शुरू किया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई, उसी कपड़ों में मलबूस, घुंघराले बालों को वो मुश्किल बांधे, सूजी आंखों और सुर्ख चेहरा ली। वो बिना उसे देखे आगे आई। पल के लिए सफ़ीर शाह का चम्मच को थामे हाथ रुका था। उसे देखकर लगता था कि उस पर काफ़ी जुल्म किया गया। क्या ऐसा नहीं था? वो लड़की मर्दों के अताब का निशाना ही तो बनती आई थी। यही सोचाते उसने होंठ खींचे। बैठो। वो बैठ गई तो उसके लिए बिरयानी प्लेट में निकाल कर चम्मच रखा और उसे पकड़ाई और पानी डाल के उसके सामने रखा। ऐसा न जाने वो क्यों कर रहा था। वहाँ खामोशी से छोटे छोटे लुक़्मे लेने लगी, लेकिन वो मुश्किल बैठी थी वहाँ। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और चेहरे पर दर्द के तासुरात। उसे पल में अपना गुस्सा याद आया। क्या वो इतना कमज़ोर था कि औरत को अपने गुस्से का निशाना बनाता? बेहज़ाद शाह सही कह रहा था, ये उसकी तरबियत नहीं थी। हज़ार नफ़रत सही, लेकिन वो लड़की थी। सनफ़े नाज़ुक गुस्से में भी वो उसको अपने हाथों से नुकसान पहुंचाता तो एक जाहिल और दकियानूसी मर्द साबित होता, और यकीनन ऐसा करने पर बेहज़ाद शाह उसे माफ़ ना करता। देखो माह, जो हुआ, प्लीज़। मैंने आपका फ़ोन आपके कमरे से लिया था। हिम्मत आ गई थी बस मुझ में। भूल गई थी कि किसी के नामालूम सी नफ़रत के बायस यहाँ पर हूँ। मुझे लगा था शायद वो शख्स मेरी कोई मदद करता, लेकिन नहीं, वो आपके जैसे ही थे। शायद यही मेरी ज़िंदगी है, मर्दों के हाथों ज़लील होना। वो नम लहजा लिए ऊंची आवाज़ में बोली। सफ़ीर शाह के दिल में बेचैनी सरायत कर गई।
उसे खुद पे गुस्सा आया। वो बेबस हुआ था। उसकी निगाह महा के बाजू पर पड़ी जहाँ उसकी उंगलियों के हल्के से निशान अब भी मौजूद थे। उसका दिल किया अपने हाथ को दीवार पर दे मारे। वो किसी लड़के को नुकसान पहुंचा गया था। आई एम सॉरी, वो नहायत आहिस्तगी से बोला कि बहा मुश्किल सुन पाई। फिर उसके लब इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट में ढले और वो फौरन खड़ी हुई। ऐसा करने पर उसने होंठ खींचे थे जैसे दर्द को बर्दाश्त किया हो। बर्तन धो दूंगी मैं, वो कहती अपनी प्लेट को जूं तो तू छोड़े वापस कमरे में जाने लगी। खाना खा कर जाओ अपना, वही संजीदगी भरा लहजा। शुक्रिया, मरूंगी नहीं, यकीन करें, वो खुश्क से लहजे में कहती अंदर चली गई। सफ़ीर शाह उसकी पुश्त को देखता रह गया। चम्मच को छूता हाथ में वहीं रह गया। वो खाना वहीं छोड़ता, सब फ्रिज में रखता, अपना काम करने लगा। पता चला उसका अहमद। उसने फ़ोन कान से लगाया। जी सर, मैं आता हूँ। नहीं सर, बेहजाद शाह ने डील कर लिया है, आपको आने की ज़रूरत नहीं, वो झिझकते बोला तो सफ़ीर समझ गया कि ऐसा करने को बेहजाद ने कहा है। ओके, वो कहता वहीं चक्कर काटने लगा। फिर पास ही मेडिकल स्टोर पर गया और ट्यूब लाते उसके दरवाजे का नोब घुमाया और अंदर दाखिल हुआ। वो उल्टी लेटी हुई थी। महा वो शायद गनूदगी में थी। सफ़ीर उसके पास गया और वहाँ मौजूद थोड़ी सी जगह पर बैठा। यह कदम उसने न जाने क्यों लेकिन बढ़ाया था। उस पर से कंफर्टर उतारा और उसे देखा जो सीधी होती उसे देखकर फ़ौरन उठकर बैठी थी। खुद से दूर सड़कना सफ़ीर शाह की ज़ेरक निगाहों से मख्फी ना रह सका था। क्या तुम्हें कमर में चोट आई है? वो नरमी से बोला। नहीं, वो चेहरा झुका गई। ट्यूब लाया हूँ, मैं लगा लूँगी। वो उसके हाथ से थाम गई। नहीं लगा पाओगे, पुश्त करो, मैं लगा लूँगी। वो नागवारी से झिझकते बोली तो सफ़ीर शाह की नरमी जाती रही। लेटो फ़ौरन, वो अब की बार हुक्म देता बोला तो महा ने सर उठाते उसे देखा। जी लेटो। नहीं, महा जो कह रहा हूँ वो करो। उसे हाथ से पकड़कर लटाते वो शख्स उसे देखने लगा जिसका चेहरा उसकी ज़रा सी कुर्बत पर सुर्ख हुआ था, लेकिन नागवारी अब भी हनूस बरकरार थी। दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है? महा मरते क्या ना करते कि मुतसादम उल्टी हुई और चेहरा तकिए में दिए दिया तो खुद पर सफ़ीर शाह के हाथों के लम्स को महसूस करने जान हालत में अटके। सफ़ीर ने उसकी शर्ट को हल्का सा हटाया। ये काम वो पहली बार कर रहा था। उसकी शर्ट को हटाते वहाँ ज़ख्म देखा जो गहरा नहीं था लेकिन अपनी हरकत पर होंठ चुलबुले। इतना कमज़ोर था वो। उसने खुद पर लानत भेजी और ट्यूब उंगली की पोर पर लगाते हल्के से लगाई। जलन होगी लेकिन ऐसे ही लेटी रहो थोड़ी देर। सफ़ीर शाह ने ट्यूब रखते पंखे के बायस उड़ते उसके घुंघराले बालों को उसकी कमर से पीछे किया। मुझे आज़ाद कब करोगे? वो कमरे की दहलीज पर पहुंचा था कि उसकी आवाज़ गूंजी। वो होंठ भींच गया। कभी नहीं। तो क्या यूं ही जख्म देकर फिर मसीहाई करके मारना चाहते हो? वो सीधी होती उठकर बैठी उसे देखने लगी। सो जाओ, मुझे जवाब चाहिए। कल हम जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ? मेरे घर। और भाई के बारे में मैं दोबारा कुछ नहीं सुनूंगा, ध्यान रखना। अभी के लिए सो जाओ। वो कहता बाहर निकल गया तो वो वापस लेटती तकिया भिगोने लगी। दिल न जाने क्यों भर आया था, शायद उसकी मसीहाई पर। तो क्या वो इस कैद से आज़ाद हो सकती थी? वो उसे घर ले जा रहा था, यानी उसका भाई वाकई उसे हैंडल कर सकता था। वो सब पुश्त डालकर आंखें मूंद गई लेकिन भूख के एहसास पर उठती बाहर निकल गई जहां वो बाहर सोफे ही पर मौजूद टीवी देख रहा था। वो किचन में आ गई और बिरयानी वापस निकालते गर्म करने लगी ओवन में। फिर वहीं मेज़ पर बैठ गई और अभी पहला लुकमा डाला ही था कि वो भी वहीं आ गया। सफ़ीर को लगा था उसने उसके लिए भी गर्म किए होंगे, लेकिन उसे खाते देख सफ़ीर शाह ने एक निगाह उसे देखा और फिर खुद ही चावल गर्म करने लगा। महा का पल में दिल किया कि उसे गर्म कर दे, लेकिन नहीं, क्या ज़रूरत थी इस शख्स के साथ कोई भलाई करने की। वह चेहरा झुकाती मगन हो गई और आधी प्लेट खाते उठने लगी। हलाल की कमाई का है मेरी, ख़त्म करो इसे फ़ौरन। महा ने उसे देखा, फिर वापस बैठती खाने लगी। वो दोनों खामोश थे, बिल्कुल खामोश। और खाने के बाद वो उठ गया तो महा ने वो प्लेटें धोई और अपने कमरे में चली गई। न जाने ज़िंदगी ने मुस्तकबिल में उनके लिए क्या लिखा था।